all the praise. I get a bit nervous and feel very much uncomfortable. And the thing is that from day one I have been always honest and maybe she was appreciating that you have been genuine and honest. So it's my natural trait and for me, I always believe in the theory that I don't have anything to be proud of. And never you are going to achieve that feat. Until I feel like that you should be proud of something and not the right knowledge. So you are not going to do your work and education teaches us to be a first objection that is very complete, moral values and all. And I had a bare minimum expectation that definitely I'm going to get a kind of level today. But honestly speaking, this kind of level has never been in Wajiram. There have been batches who are also quite as good as you may be, and they might be what you can say praising me. But for me, right from the implant, I was very much confused how to react. So even we are gifting, okay, the rules or as a token of gratitude or whatever. I was very much nervous at that point. And I was praying, oh God, just start teaching. तो वहाँ पे मैं comfort zone में आ जाऊँगा, हिस्ट्री शुरू हो जाएगी और सब तक हम backfoot पे रहेंगे. So batch 22, thank you so much. Thank you from the core of my heart, from my bottom. And I'm very nervous. I've already told you, and I'm not lying. I'm not lying that some of you will be thinking, तो आप बोलोगे ही ऐसा ऐसा. ठीक है? It was seriously amazing experience to be with you, and I always feel also happy. And just like you might be checking the schedule at times, I was also checking schedule today. You have to do bad. And there is no other thing than to prove this thing that how can I show or how can I tell you that yes, I'm 100% right or perfect in the sense that I really did enjoy taking class to all the 14 and 15 lectures in your batch. So really I do a kind of this gesture, but here as a proof, okay, I'm giving this gesture 9, 8, 7, 3, 6, double 1. In case of any doubt, okay, if you want any query or if you have a 1 hour discussion, okay, you first of all fix an appointment, you meet me in Wajiram, I can sit with you and will help you to understand other things also. See, my number is more important than my speech. तो मेरे कहने का मतलब कि आपका इतना प्यार तो हमने अपना नंबर भी दीजिए कि अगर आपको कोई डाउट हो पूछना हो कुछ तो आप वाजिराम से हम लकीली शायरी याद आ गई और परफेक्ट कॉपी में एक तो ऐसे बोल रहे हैं मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी ऐसी कलरफुल रहे, रंगीन रहे, तो जितने लोग मिले तो गिर गिर के मिले. हमारा हाल तुम्हारे हाल से कुछ अलग है, हमारा हाल तुम्हारे हाल से कुछ अलग. बस फर्क इतना है कि तुम याद करते हो और हम भूल नहीं पाते. रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है. रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है. अच्छा, अब एक सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस बेला आवाज़ देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाते हो यहाँ पे.
और किसी को चेक करना है, इन्होंने जो पहली बार बोला ना कि मतलब कि बहुत कई सारे लोगों के तुम लोगों ने यहाँ आए वाजिरा में पढ़ाने के लिए, जब ऐसे ऐसे करके किसी तरह से आ गए और जब यहाँ पे खड़े हुए ऐसे करके ऐसे देख के, इसलिए इट्स रिक्वायर्स अ ग्रेट करेज टू बी हियर. So please, whosoever is saying anything, even at least you boost her confidence or boost his confidence and don't discourage. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग सजाया है. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रखे तेरी जान सदा जहान में ये रहे घर पे. हाँ मेरी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बस पीता न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के सोन कहे. तेरी मिट्टी में सजा गुजर के मैं हर जाए किसी है की तेरी दियों में बन जा तेरे खेतों में लहराए किसी है की केसरी. नेक्स्ट हमारे पास शायरी है शुभम भाई की तरफ से. पहली बात ये है कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और पहली बार कुछ मराठी इससे पहले मराठी में बहुत मतलब कुछ तो लिखा था और ये हुआ था. पहली बार हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ सर. तो बेसिकली सबसे पहली बात मैंने मतलब कुछ अलग किया था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था. मतलब जब यहाँ आए तो हमारे यहाँ मतलब वो रेशियो होता है ना, तो हमारे मतलब हम 80 के बैच में 8 लड़कियां थी और 8 लड़कियों में 4 लड़कियां तो हमारे जैसी दिखती थी.
टेक्निकल से तो सर जब यहाँ आके मतलब जब यहाँ आके देखा तो हमें पता चला कि जैसी कुछ क्लासरूम होती है। तो जब यहाँ आए तो कुछ लिखा सर मतलब सारे जो हमारे जैसे उनकी तरफ से यूं तो देखिए अदाकारियां हमने पहले भी बहुत सी। वाह वाह वाह। यूं तो देखिए अदाकारियां हमने पहले भी बहुत सी, पर आपकी मुस्कुराहट की बात ही कुछ और। यूं तो देखिए अदाकारियां हमने पहले भी बहुत सी, पर आपकी मुस्कुराहट की बात ही कुछ और थी। और घायल तो हम पहले भी बहुत हुए हैं, और घायल तो हम पहले भी बहुत हुए हैं, पर जख्मों से भरे हम और मरहम सी आप, ये बात ही लाजवाब। और इसके बाद मतलब कुछ लड़के होते हैं शायद से होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो आपका एक रेफरेंस है ना, वो हमने उनको इतना देखा कि जितना देखा जा सकता। हाँ, तो उन्होंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। उन्होंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर देखने के सिवा और किया भी क्या जा सकता था। देखा जा सकता था, पर देखने के सिवा और किया भी क्या जा सकता था। ना बात करने की थी हिम्मत, ना नंबर मांगने का था दम। ना बात करने की थी हिम्मत, ना नंबर मांगने का था दम। अब इस साल का वैलेंटाइन तो निकल गया, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। और इसके बाद मतलब जो अपना पीछे वाला जो वैलेंटाइन वीक हुआ उसमें कुछ लोगों की शूटिंग हुई। उनकी सेटिंग हुई वो तो हमें मतलब टीपी गार्डन वगैरह में मिल जाते हैं। तो बाकी जो दो बच्चे होते हैं ना, उनमें दो कैटेगरीज पड़ती हैं। जो एक होते हैं वो पहले से डीट होते हैं, जो फिर ये साइकिल रिपीट करते हैं। मतलब बचते हैं, फिर उनको अपनों की वैल्यू समझ में आती है। तो उनके बारे में लिखा है, वैसे तो भीड़ का हिस्सा हम भी नहीं थे, भीड़ का हिस्सा हम भी नहीं थे, पर अपनों की खोज के लिए निकल पड़े भीड़ में। वैसे तो भीड़ का हिस्सा हम भी नहीं थे, पर अपनों की खोज के लिए निकल पड़े भीड़ में। वो तो बस वक्त ही था अपना, वो तो बस वक्त ही था अपना, जिसने सारे अपने वक्त पे लिखा दिए। और सर मतलब चंद लाइनें सर आपके लिए, जो मतलब नहीं जब तक हिस्ट्री पढ़ी तो पढ़ने का कभी मतलब इच्छा नहीं हुई थी। जो इधर आके मतलब पहली बार जो हिस्ट्री का ये हुआ। कुछ लाइनें सर आपके लिए। यूं तो आपसे रूबरू हम कुछ कम ही हुए हैं, यूं तो आपसे रूबरू हम कुछ कम ही हुए हैं, पर लगता है कि आपको सदियों से जानते हैं। यूं तो आपसे रूबरू हम कुछ कम ही हुए हैं, पर लगता है कि आपको सदियों से जानते हैं। वैसे तो रिश्ता नहीं था कोई आपसे हमारा, वैसे तो रिश्ता नहीं था कोई आपसे हमारा, पर आपको टीचर नहीं हम अपने बड़े भैया मानते हैं। जरूरत थी इसलिए साथ देने वाले तो बहुत देखे हैं, जरूरत थी इसलिए साथ देने वाले तो बहुत देखे हैं, पर कोई बेमतलब साथ दे उसे हम अपना दिलदार मानते हैं। जरूरत थी इसलिए साथ देने वाले तो बहुत देखे हैं, पर कोई बेमतलब साथ दे उसे हम अपना दिलदार मानते हैं। अपना घर छोड़ के दूर चले आए थे यहाँ, वो शायरी सुनाकर हमारे गम बुलाने वाला, वो शायरी सुनाकर हमारे गम बुलाने वाला, हम आपको वो अपना यार मानते हैं। जो मिलने मैं कभी जाऊं मुस्कुराहट लेके जाता हूँ, तभी हर बार यारों को मैं इतना याद आता हूँ। परफॉर्मेंस में हमारे शुभम हो गया। तो अब सिमरन हमारे लिए गाना गा, 2-3 लाइनें एक बार जोरदार तालियां। बस
I'm really obliged that I got to learn so much from you. So far in my career, you are the best teacher ever. I was actually not prepared for this, sir. I didn't know that you were farewell today, otherwise I would have prepared something. I wasn't keeping well. But still, since आपने इतना कुछ सिखाया है, I would like to dedicate 2-3 lines to you, sir. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः. अभी मैं बैठी हुई थी ना, like I got to know ऐसा हो रहा है last day आपका. I actually got emotional. खत्म मतलब अभी. So like thank you so much, sir. Really nice. I will say thank you to you also, and in a different way. When you just said this line, I was feeling a bit envious and even jealous that my voice is not as good as yours. तो अगर इस तरह की कोई queries questions पूछे कि हाँ आप next life में क्या बनेंगे, तो बहुत पहले से सोचता कि singer. ठीक है. तो खैर आपकी तो आवाज अच्छी है ना, हमारी इस आवाज में तो बड़ी थैंक यू. वाह वाह शुभ है यार. एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ ऐसे ही, मतलब कभी कभी. तो आपके लिए इसको एंकरिंग नहीं देनी थी. एक गजल लिखी है दिल से, और अगर पसंद आएगी तो शोर खाना बाहर तक आवाज पहुंचाना. ईमेल है मोटा. गजल का उन्वान है कि मैं डरता हूँ. करेंगे तो बताना मुझे. रुक जाता हूँ साहिल पे, रुक जाता हूँ साहिल पे. साहिल मतलब किनारा. रुक जाता हूँ साहिल पे, लहरों में जाने से डरता हूँ. रुक जाता हूँ साहिल पे, लहरों में जाने से डरता हूँ. तेरी आंखों के समंदर में डूब जाने से डरता हूँ. और जब से बनाया है ये मोहब्बत का मकान, जब से बनाया है ये मोहब्बत का मकान, मैं आते हुए हर एक तूफान से डरता हूँ. और ये बहुत बड़ा मेरी जान से सुनना और फील करना कि फील बहुत ज्यादा हो रहा है. देखो फील मिलेगा. नंबर ले ले. दिल को तेरे विशाल से, विशाल मने कनेक्शन यूनियन. दिल को तेरे विशाल से क्यों होगा ऐतराज, दिल को तेरे विशाल से क्यों होगा ऐतराज, बस फिर से टूट जाने के ख्याल से डरता हूँ. और चलो बहुत टाइम हमारे पास कम है, तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है नीलेश हमारे लिए एक करेंगे. तो इसको फन में ये फन है, ये फन लविंग एक्ट है, तो ज्यादा दिसत नाही रे. अरे श्रेया दिसत नाही. कैरेक्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं इतनी पास. शुरू में जब
जब आए थे फर्स्ट क्लास में, बोलते नहीं कि हम हिंदी निकालना नहीं चाहते, निकल जाती है। ये कुछ उसी तरह की बात है सर। सही में यहाँ खड़ा होना बहुत ही यार, ये कैजुअल मिमिक्री है। बहुत दिन बाद स्टेज पे आने का मौका मिला है। कुछ 2-4 टीचर्स हैं जो फेमस हैं, दिल के पास हैं, उनकी ट्राई करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता था, फेयरवेल कल ही पता चला, तो अचानक से मतलब जो भी हो रहा है स्पॉन्टेनियस है। परमार सर, शायरी की डिबेट यहाँ कौन है? शायद नितेश शायरी मांगेगा, बोलेंगे चलो ठीक है। उनकी आंखों में देखा तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, मस्ती करते तो बहुत ज्यादा मस्ती करते। उनकी आंखों में देखा to Northeast. तो डूब गए वहीं। बाकी है पर जाने का परमार सर की सुनिए। One of the most favorite teachers of ours. पूजा सर। देखो यार, नॉन-वेज अवॉइड करूँगा। ठीक है, बट अरे जाओ एनसीईआरटी पढ़ के आओ। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ना कोई अंदर आए पकड़ के मारो साले। One of my favorite teachers, जैन सर। ठीक है। Emotional people. One day, I got so much panic that I went to my favorite country, Somalia. अरे यार आज नहीं आ रहा, कुछ याद दिलाना करो यार। हाय हाय। आतिश माथुर, आतिश माथुर, आतिश सर। मेवा। M E This is not a marker. This is not a marker.
ऑप्शन प्लीज हेल्प करो यार। आतिश माथुर सर। क्या है? आतिश क्या माथुर। है तू? मेरे को मैं नाचेगा। It's not about financial inclusion. चश्मा यार शिवरकर सर का कुछ। शुक्ला। My dear. मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, आप नाचते रहोगे। कौन बोलता है? टॉकिंग अबाउट बजट। निर्मला। ठीक है, मुझे ये सॉन्ग एक्चुअली इनको देख के याद आता है। मैंने एक बार इनको डाउट पूछा, सर ने इतनी रूडली मेरे को उस समय सर बहुत गुस्सा करते आते सर ने उस समय मेरे दिमाग में गाना आ रहा था, जस्ट फाइंड इट अप। ठीक है, कुछ प्रिपेयर करके तो आना था यार। बरसात की मौसम में तुम्हारी की आलम में, बरसात के मौसम में तुम्हारी के आलम में मैं घर से निकल आया, तो भी खाया। अब जिंदा हूँ तो जीने दो, जीने दो, मेरी बरसात में भीगने दो। अब जिंदा हूँ तो जीने दो, जीने दो, मेरी बरसात में भीगने दो। पे चलो मिल लो तुम। इधर चला देवी अरे खबर चल। मम्मी पापा ज्यादातर तो भाई के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं है, मॉम डैड के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बाकी लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। भाई जो भी है उनसे ऊपर, मॉम डैड से ऊपर कोई नहीं। इसलिए दूसरी बात, रीजन है क्या चिल्ला रिकॉर्ड है, हमारी हर बात ही रिकॉर्डेड है। तो बहुत लेट है लाइफ में, तभी समझ रहे हैं, फिर बोलेंगे 10 साल बाद आना, कहीं बाई चांस पढ़ने में, तब बताएंगे उनके बारे में। एक बार तो उन्होंने बोल दिया, I usually get tired teaching the same stuff in 30 batches। ठीक है, तो मतलब यहाँ बोल लिया कितना और घर में बात करें। एक बार उन्होंने बोला कि यार कुछ बोलो, कुछ बात करो। क्या बात करें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कुछ। यार कुछ तो बोलते यार, कुछ तो बोलो यार, ऐसा से यार हमें नहीं आ रहा, तुम ही बोल लो, हम सुन रहे हैं, कान है, हम सुन रहे हैं, नहीं तुम बोलो। तो गुस्सा आ गया, गुस्सा जल्दी सिराजुद्दौला का ट्रेड हमारे। हमने कहा यार देखो, अब मैं बोलता हूँ तो मुझे पैसे आते हैं, तुम पैसे लेके आओ, बैठ जाओ। हमें बाहर खाना पड़ा। तो सही है यार। वो अपने लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो अब आप बताओ क्या सर एक और क्वेश्चन है सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे सर, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है वैसे। सर आपकी स्किन ना हमेशा ग्लो करती रहती है, आप कुछ स्पेशलाइज सर हमको भी बताइए, हम गोरे नहीं हैं।
सॉरी हमें सीरियसली मुझे नहीं पता है इस बारे में क्यों है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे इस बारे में नहीं पता। सेकंड थिंग, हम अपनी नींद से, शायद लोग बोलते हैं साइंस में कि नींद पूरी होनी चाहिए, तो हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है, और वाटर इंटेक से नहीं कॉम्प्रोमाइज करते। तो कई लोग को लगता होगा कि हम बहुत फिट हैं, बड़ा डाइट वाइट मेंटेन, तो हार्डली यू वोंट बी शॉक, ठीक है। मतलब मेरे घर वाले परेशान रहते, मेरे मम्मी पापा की, तुम इतना कम खाए कैसे खाते हो, मतलब एक चपाती दिन में, एक चपाती रात, आदमी कम खा के भी इतना कम, बहुत कम है। हाँ, मिठाई पे फिर हम थोड़े से थोड़ा वहाँ सेल्फिश है, थोड़ा वहाँ सेल्फिश, अदरवाइज कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, सॉरी। हाँ, फेस वॉश शायद शादी में लगाया था, और शायद जो होता है ना सारा फेशियल जो सैलून को कराते हैं, वो भी सर शादी उसके बाद पूरे लाइफ में एक बार कराया। हमें चेहरे पर कोई चीज पसंद नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए हम एकदम प्लेन, ठीक है, सिंपल, जैसे दिल में वैसे बाहर, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। 10 साल बाद मिलोगे तो भी ऐसे रहेंगे। एक और 2 लाइन की शायरी में जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम हमारे पास। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ चले गए आप? बहुत ज्यादा हिम्मत करके आगे आए हूँ। तो चले गए। ये जो शेर है ये उन सभी के लिए हैं जो यहाँ पे मेरा इंतकाम देखेगी सोच के आए थे। दो मैं शिवर कर रहा हूँ अभी। अरे सर को तो आना चाहिए। अब सबसे शिकायतें करनी छोड़ दी है, अब सबसे शिकायतें करनी छोड़ दी है, अब कलम से दिल की आपको लिखता हूँ। अब सबसे शिकायतें करनी छोड़ दी है, अब कलम से दिल की आपको लिखता हूँ। मिल गई कामयाबी तो मिलने आना, मिल गई कामयाबी तो मिलने आना, नहीं तो नजरअंदाज करना तो तुम्हें आता ही है। एक नज़म लिखी है आपके भाई ने, बहुत जरा, अच्छा, नज़म का उन्वान है कि कुछ बाकी है मेरे पास, कुछ तुझ में छूट गया है। नज़म का उन्वान है, कुछ बाकी है मेरे पास, जो जिसका दिल टूटा है वो फील कर लेंगे, जो फील करेगा वो चिल्ला के बाहर पहुंचाना आवाज पूरी, पता चलना चाहिए कि आज यहाँ फेयरवेल चल रही है। तो सब ये है कि छीन ही लो मुझसे तुम, छीन ही लो मुझसे तुम, जो बाकी रह गई है यादें अब, छीन ही लो मुझसे तुम, जो बाकी रह गई है यादें अब, धुंधली सी पड़ती दिख रही है वो सब तुम्हारी बातें अब। और जिंदगी भर साथ चलना, कहा था मैंने ऐसा कब, जिंदगी भर साथ चलना, कहा था मैंने ऐसा कब, खुशियां सारी मुझ पे लुटाना, चाहा था मैंने ऐसा कब। मेरी तो चाह थी कि तेरे साथ है जाने जा, मेरी तो चाह थी कि तेरे साथ है जाने जा, चंद हसीन लम्हे जिंदगी के अपने नाम कर लेंगे, और उन्हीं लम्हों को याद कर हिस्से सारी तमाम कर लेंगे। वाह 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 वाह। बहुत सारी। और लास्ट ये है कि, और लास्ट शेर इसका ये बहुत प्यारा, मतलब मेरे दिल के करीब है, तो ये ध्यान से सुनना और फील करना कि शुभ मजे बैग पर तुम्हारी बेनियाजी से जाना, बेनियाजी मीन्स इग्नोरेंस, पर तुम्हारी बेनियाजी से जाना, दिल मेरा टूट गया है, कुछ बाकी है मेरे पास, कुछ तुझमें छूट गया है। और इसके बाद हमारे सोमू भाई बस थोड़ी सी शायरी और एक आध गीत देने वाले, लास्ट है लास्ट। हाँ, शेर की शायरी इसके बाद। आज क्लास उठलं जाऊ का आधी क्लास सुटल्यावर सर आता घेणार नाही. क्लास बोलले ते. थांबू आपण एक्स्ट्रा टाइम. हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, फिर भी लिखने के लिए कोशिश किया हूँ। 31 जुलाई 2019 से लेकर, ये शायरी नहीं है सर, 31 जुलाई 2019 से लेकर
आज 25 फरवरी 2020, एक साल का ये लंबा सफर आपके साथ। पहले बार जब पहले दिन जब सर क्लास में आए थे, वो खुद अपने बारे में बोले थे कि मैं पढ़ाता जैसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन 14-15 लेक्चर तो मुझे चलना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन सर, मॉडर्न हिस्ट्री को आप इतने चमत्कारी के साथ पढ़ाए और हमारे दिमाग में देखा कि और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ प्यार वाली शायरी से लेकर बेवफाई तक सबसे एक अलग प्रकार के माहौल बना दिए हैं आप। जिंदगी का इतना लंबा सफर आपके पास इस क्लास में बिता हुआ पर सबसे सुनहरा है और रहेगा भी। थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारी B20 बैच की तरफ से। 22 बैच की तरफ से एक्चुअली ये छोटा सा है ना, फिर भी इसको पकड़ कर इधर खड़े रहना एक्चुअली बहुत अच्छा है। थोड़ा सपोर्ट करना। अभी साइड शुरू हो रहा है, वाह वाह थोड़ा थोड़ा कर रहा है। जुदा ऐसे कोई खबर आई है, जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांस थम आई है। हम देंगे आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। ऐसे दिखने में आप एक आम इंसान हैं, ऐसे दिखने में आप एक आम इंसान हैं, पर सच मानो हमारे लिए तो आप भगवान हैं। प्यारे सलमान सर, आपके कर्ज उठाना ना आसान है, आपके कर्ज उठाना ना आसान है, आपके बिना सच में हमका गुजारना आसान है। जान रहने दी है पर जीना आपने सिखाया है। जान रहने दी है पर जीना आपने सिखाया है। पाला माँ बाप ने पर काबिल हमें आप। एक ही दुआ आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा एक प्यार, ऐसे ही जो आप हम सबको जो मोहब्बत किए हैं, इतना प्यार किए हैं, सब आपका ब्लेसिंग पूरा टिल एंड हमारे साथ रहे। और एक छोटा सा गिफ्ट हमारे B22 बैच की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेडी भाई सबको थोड़ा सा एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। टाइम बहुत हो गया सर, अब डांटेंगे हमें वरना। ये मिटा देते हैं। आपने पढ़ लिया ये एक बार? तुम B16 दरवाजे के पास बैठे। B20 बैच जिंदा हो। जोरदार तालियां एक बार हमारे ट्रेनिंग बैच के लिए। तब तक आप शायरी सुन लो। आपके जो बिछड़े, अब के हम बिछड़े तो शायद अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये वाले ज्यादा दीवाने लग रहे हैं मुझे। दीवानी है ये। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है परमार सर के लिए, एक बार देखिए। स्मॉल टोकन।
छोटा चेतन पण आला. हे आपण हिमीला दूध का टेडी म्हणून जसं बायको हा देवदूत का आधी विचार. हा देवदूत का आधी विचार. तुला बळ फुकटाच मुझे ब्रजेश भाई की तरफ से हमारे तक ये है वो एक कमजोर हो गया सब कुछ खाने के लिए डिफरेंट रियलिटी में मानना पड़ेगा एक्चुअली दिसते हैं आमच्या कॉलेजमध्ये ना क्लास नाही घ्यायचा आम्ही सातवीत जायचो. मस्त आहे की और बैच 22 कैसे हो टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा टाइम ना लेती हूँ आपको 5 मिनट में कोशिश करूंगा कि हर जोनर की शायरी सुना दूं. सर जितनी अच्छी शायरी तो नहीं करता पर थोड़ी कोशिश जरूर कर लेता. पहला शेर सर के लिए है. सितारे को आंखों में बसाए रखना. छोटी चेतन आहे म्हणते मी छोटा टेडी हाणला. सितारों को आंखों में बसाए रखना बहुत दूर तक रात होगी. मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हो. सितारों को आंखों में बसाए रखना बहुत दूर तक रात होगी. मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी फिर किसी मोड़ पर यूं ही मुलाकात होगी. चाय के शौकीन तो होंगे ही. चलो जो चाय के शौकीन है ये शेर उनके लिए है. सवाल ये था कि चाय में चीनी कितनी लोगे. अब अगली लाइन बहुत भारी है भाई लोगों संभाल लेना. सवाल ये था कि चाय में चीनी कितनी लोगे और हमने कह दिया बस एक घूंट पीकर दे दीजिए. जब मैं घर से बाहर निकला था पहली बार तो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी. यहाँ जितने लोग घर से बाहर आए हैं ये आप लोगों को रिलेट करेगी. कोशिश करता हूँ आप ये बात. बेटे डोली में विदा नहीं होते और बात है. बेटे डोली में विदा नहीं होते और बात है. मगर नई नौकरी की ज्वाइनिंग डेट के पहले घर की आखिरी रात भारी मान लिए वो भी बिस्तर पर रह रहकर करवट बदलता है. अपने कमरे की दीवारों को विदा गीत सुना जर्रा जर्रा सूनी आंखों में भरता है. होश संभालते ही जिम्मेदारियां समझो बेचैन एक समंदर अब नहीं उससे संभलता है. शहर गलियां घर दो छूटने का दर्द समेटे. सूटकेस में सर्टिफिकेट सहेजते सीना चाक और मन निकलता है. अपनी बाइक बैग कमरे के अजीज पोस्टर से आखिरी दफा एक बार मिलकर अपने भाई बैग कमरे की अजीज पोस्टर से आखिरी दफा एक बार मिलकर अपने पीछे एक दुनिया छोड़कर भीगी पलकें छुपाए मुस्कुराता निकलता है. बेटे डोली में विदा नहीं होते ये और बात है. आखिरी शेर अक्सर भी दिल नहीं भरता. मैं थोड़ा सा हिंदी बोलता हूँ संशोधन करता हूँ. बेटे डॉली के लिए उड़ाते हैं. So whatever I will be teaching in all the subsequent lectures, I have already lay out for it. So I had planned initially that I will be teaching Ambedkar also, but you people had taken so much of time that forcing me to